Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, welcome to the online classes of Noor School and College Mansehra. Dear student, in the previous class we have discussed about formula unit. So, what is formula unit? The smallest repeating unit of an ionic compound showing the simple ratio of ion is called formula unit. My next question is, what is molecular mass? What is molecular mass? Molecular mass is the sum of relative atomic masses of all the atoms present in a molecule is called molecular mass. My next question is, what is the unit of molecular mass? The unit of molecular mass is atomic mass unit, which is AMU. Next question is, what is formula mass? Formula mass is similar like molecular mass, but formula mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in a formula unit of an ionic compound. My next question is, what is ion and how it is formed? First of all, what is ion? The particle that carries an electrical charge, negative or positive, due to loss or gain of electron is called ion. What is different between cation and anion? Cation, the atom which loses electron, a net positive charge is appear on that atom and that atom is called cation, while the atom which gain electron and a net positive charge appear on that atom, that charge particle is called anion. These are some of the main points of previous lecture. Now student, let's start today's lecture. Now student, in this lecture we compare the ion and atom. What is the main difference between ion and atom? First of all, what is atom? Atom is a neutral because it contains equal number of protons and electrons, while ion has a net charge, either it may be negative or positive. Second difference, atom has same number of protons and electrons, while ion has different number of protons and electrons. We see that cation have less number of electron, while anion have more number of electron. Third difference is, it is the smallest particle of an element. The smallest particle of an element is called atom, while it is the smallest unit of an ionic compound. This student, ionic compound are formed between ions. Two types of ion, cation and anion, when combined together they form compound that is called ionic compound. So, it is the smallest unit of ionic compound, while it is the smallest unit of an element. The main difference is, it can or cannot exist independently, while it cannot exist independently. जितने भी आपके पास एटम होते हैं, ये कुछ, या सिंपल अगर मैं कहूँ,
ये इंडिपेंडेंटली रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, मतलब कुछ रहते भी हैं और कुछ नहीं भी रहते। जबकि जितने भी आयंस होते हैं ये अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, ये हमेशा दूसरे आयन के साथ कंबाइन होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एटम्स आर सोडियम एटम्स, पोटाशियम एटम एंड अल्मोनियम एटम्स। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकती हैं स्टूडेंट। वाइल एग्जाम्पल ऑफ आयंस आर सोडियम आयन, पोटाशियम आयन एंड अल्मोनियम आयन। सो समटाइम बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपके शार्ट क्वेश्चन का 4 नंबर का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन differentiate between atoms and ion। so it is very simple। 4th पॉइंट मैंने आपको बता दिए जो आपको आयन और एटम में डिफ्रेंशिएट करवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। नाम से ही जाहिर है मॉलिक्यूल और उसका आयन को बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। डेफिनेशन समझ लेते हैं सबसे पहले। व्हेन अ मॉलिक्यूल्स लूजेस और गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन आर आल्सो कॉल्ड रेडिकल। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करेगा तो उस मॉलिक्यूल से आयन बनेगा और उसको रेडिकल भी बोलेंगे, या मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे या रेडिकल बोलेंगे। अब स्टूडेंट, जैसा कि एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं तो उससे कैटायन और एनायन बनते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उससे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उससे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे। सिमिलर कंसेप्ट है स्टूडेंट। जस्ट कैटायन और एनायन में हमने एटम की बात की थी, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन को डिस्कस करते हैं। बाय डेफिनेशन a molecular ion having positive charge is called cationic molecular ion, and cationic molecular ion are formed when a molecule loses electron। okay, cationic molecular ion, अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो उस मॉलिक्यूल से बनने वाली स्पीशीज़ को बोलेंगे मॉलिक्यूलर कैटायन। और याद रखिएगा मॉलिक्यूलर कैटायन इलेक्ट्रॉन लॉस करने से ही बनता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, इफ इट लॉस इलेक्ट्रॉन सो इट्स बिकम मॉलिक्यूलर कैटायन। सिमिलरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करते तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करते तो +1, मीथेन लॉस करेगा तो मॉलिक्यूलर कैटायन एंड नाइट्रोजन कैटायन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर कैटायन बोलेंगे इसको। इसी तरह स्टूडेंट, इनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, अगर आपको कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्लियर है तो एनायनिक मॉलिक्यूलर एनायन इसके अपोजिट लिखें तो आपके पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। डिफिनीशन को देखते हैं स्टूडेंट। अ मॉलिक्यूलर आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इनआयनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड इट इज फॉर्म व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन्स। इनआयनिक मॉलिक्यूलर आयन स्टूडेंट हमारे पास तब बनेंगे जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और याद रखिएगा, जब भी एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ बन जाती है। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है OH CH2 CH2 OH। ओके, दिस इज
molecule, if it gain electron, it become -1. This is molecular anionic molecular ion. Similarly, C2H5OH ने ये एक मॉलिक्यूल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आज का हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ फ्री रेडिकल, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट, free radical are atoms, are groups of atoms that has a single unpaired electron, or you can say that odd number of electron in its outermost shell with no charge. Dear student, कोई भी एटम हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, याद रखिएगा कोई भी एटम हो या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम हो, मीन टू से मॉलिक्यूल हो, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसके बैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, याद रखिएगा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है, उसके बैलेंस शेल में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर में नहीं है। फॉर एग्जांपल 7 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एटम क्या हो जाएंगे, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। उस एटम को बोलेंगे फ्री रेडिकल। इसी तरह कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल जिसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। और याद रखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हो किसी भी एटम के अंदर तो वो तो आयन तो नहीं होगा, तो इसके ऊपर कोई चार्ज वार नहीं होगा, विथ नो चार्ज। तो दिस पहले आपने डेफिनेशन को समझना है। फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूँ स्टूडेंट, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम मीन टू से मॉलिक्यूल, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जिसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उस एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। नेक्स्ट इज हाउ टू रिप्रेजेंट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल और आयन, जैसे कि आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव लिखते थे या उसके ऊपर नेगेटिव लिखते थे। अब फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसा सिंबल यूज़ करना चाहिए, तो याद रखिएगा फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उस एटम के सिंबल के ऊपर जस्ट एक डॉट सा शो करना है, जैसे कि हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1 डॉट, CH3 1 डॉट। अब स्टूडेंट अगर इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वो आयन होगा, और अगर डॉट होगा तो वो क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या ये पेयर में है, नहीं, इट इज अनपेयर्ड, सो इट इज फ्री रेडिकल। क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में है, नहीं, 8 पेयर में होते हैं, तो ये भी फ्री रेडिकल। इसी तरह CH3 कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, तो एक रह गया है, 3 शेयर्ड हो गए, अब एक अनपेयर में है, मतलब इसका एक जोड़ा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ एटम है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ एटम क्या बिहेव कर रहा है, फ्री रेडिकल के तौर पे बिहेव कर रहा है। सो दिस इज फ्री रेडिकल and how to represent free radical. Now next is formation of free radical.
Free radical are formed by the homolytic fission, which are equal breakage or equal breaking of bond between two atoms. दो एटम के बीच में मोस्टली दो एटम के बीच में बॉन्ड अगर इक्वली टूट जाए तो उससे बनने वाली स्पीशीज फ्री रेडिकल बन जाती है। एग्जांपल में लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो क्लोरीन एटम्स हैं स्टूडेंट, 2 क्लोरीन। इन 2 क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज आर 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 7, 2 4 6 7। इन दो क्लोरीन के बीच में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। खैर हम बॉन्डिंग वाले चैप्टर में इसको डिटेल से देखेंगे कि इस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड नाम देते हैं। अगर हम ये Cl2 मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल। दो क्लोरीन की एटम आपस में कंबाइन होते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन खुद अपना ले लेगा और ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ये एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लें तो याद रखिएगा ये होमोलिटिक फिजन कहलाएगी। होमोलिटिक फिजन उस फिजन को बोलते हैं जिसमें इक्वल ब्रेकिंग हो जाए। इक्वल मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर। इस तरह ये हो सकता था अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं तो इसको हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग बोलते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि ये दो सिमिलर एटम है इसके बीच में होमोलिटिक ब्रेकिंग होती है। होमोलिटिक ब्रेकिंग से ही हमारे पास एक क्लोरीन ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और इसके 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये भी फ्री रेडिकल बिहेव करेगा और ये भी फ्री रेडिकल के तौर पे बिहेव करेगा। सो किस तरह बनते हैं? फ्री रेडिकल आर फॉर्म बाय द होमोलिटिक और इक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं स्टूडेंट, ये बड़े हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। रिएक्टिव स्पीशीज से मुराद कि ये हमारे पास रिएक्शन बहुत फास्टली करती हैं, हर किसी की चीज़ के साथ अटैच होकर कोई ना कोई रिएक्शन को प्रोसीड करवाती हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अगर स्टूडेंट हम मीथेन गैस और क्लोरीन गैस को किसी भी कंटेनर के अंदर बंद कर दें और उस गैस को हम डिफ्यूज सनलाइट के आगे रख लें, ओके, तो सनलाइट की वजह से ये जो क्लोरीन के जो बॉन्ड होता है Cl2 क्लोरीन गैस का जो बॉन्ड होता है ये टूट जाता है और 2 फ्री रेडिकल हमारे पास बनते हैं। ओके, सिमिलरली मीथेन जो है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। CH4 को अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो यूं इस तरह होता है CH4। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर होते हैं। इसमें यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होती है तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कार्बन, तो इससे बनने वाली स्पीशीज ये फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेंगे। अगर हम मीथेन और क्लोरीन को कंटेनर के अंदर बंद कर दें और डिफ्यूज सनलाइट के आगे रखें तब हमारे पास एक तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनेंगे और साथ में मिथाइल और हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल बनेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले किसके फ्री रेडिकल बनेंगे। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल। होता क्या कि डिफ्यूज सनलाइट की मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन जाते हैं, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट,
ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होते हैं, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल और मिथाइल ग्रुप के फ्री रेडिकल बन जाते हैं डिफ्यूज सनलाइट में। ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है, ये लेट सपोज ये हमारे पास ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया और मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये दो फ्री रेडिकल बॉन्ड बना के HCl बना लेते हैं और हमारे पास एक मिथाइल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, दो हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बने थे, उनमें से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ने इस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक किया तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, HCl बन गया, HCl। तो जब इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिए तो क्या रह गया, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल। अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल होता है, ये थर्ड स्टेप में क्या करता है, मिथाइल फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट विथ अनदर Cl2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्लोरोमीथेन एंड अगेन क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल होता है, ये अगेन दोबारा Cl2 मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कैसे, ये मिथाइल फ्री रेडिकल था, ओके ये मिथाइल फ्री रेडिकल इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल बनने पे मजबूर कर देता है और इसको यहाँ से तोड़ देता है। तो यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, CH3Cl और फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल दोबारा क्या करेगा, इस एक और हाइड्रोजन को निकालेगा, HCl बनाएगा, फिर से एक मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, फिर से ये क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। अनटिल एंड अनलेस ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये हाइड्रोजन के चारों एटम यहाँ से रिप्लेस्ड नहीं हो जाते। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपको फ्री रेडिकल को एग्जाम्पल और स्टेप बाय स्टेप इजीली एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया द मेन पॉइंट्स ऑफ टुडे लेक्चर इज फर्स्ट वन, molecular mass. What is molecular mass? When molecule lose or gain electron, it form molecular ion, and molecular ion is also called as radical. First of all, molecular ion is formed when molecule lose or gain electrons, and it is also called radical. What are the types of molecular ion? There are basically two types of molecular ion. First one is cationic molecular ion and second one is anionic molecular ion. Cationic molecular ion have positive charge because they are formed when loss of electron occur. Example of cationic molecular ion are carbon dioxide, cationic molecular ion, carbon monoxide, methane and nitrogen, etc. Anionic molecular ion. Anionic molecular ion having negative charge is called anionic molecular ion, and it is formed by the gain of electron by a molecular anion. Free radical. What is free radical? The atoms or group of atom that has a single unpaired electron is called free radical. And free radical is represented by putting dot over this species. Next is the formation of free radical. Free radical are formed by the homolytic fission of bond between two atoms.
These are the main points of today's lecture. Now come to the homework. Write down the whole lecture on your worksheet. This is your homework.